اور وہ بیٹا کہہ رہا تو اللہ گواہ ہے میری آنکھوں سے آج بھی آنسو آتے ہیں جب میں وہ چیز وہ دیکھتا ہوں. اس بچے نے کیسے رویا, کہا ابا میرے پاپا. اور میں جانتا ہوں کہ ایک باپ, ایک بیٹی کا باپ بھی ایک بچے کا باپ ہوتے ہوئے بھی مجھے اس چیز کا اندازہ ہے. یتیم ہونا آسان بات نہیں ہے. وہ بچہ ساری زندگی جب تک جوان ہوتا رہے گا نا, جب تک وہ اس باپ کو ڈھونڈے گا, کوئی اس کے باپ کی بھرپائی کو پورا نہیں کر پائے گا. اس کی مہندی اس سے اتری ہوئی نہیں ہے ہاتھوں سے. اور وہ بیچاری ہنی مون کے لیے کشمیر میں آ رہی ہے. کیا یہ میرے لیے دکھ کی بات نہیں ہے؟ کیا وہ میری بہن نہیں ہے؟ کیا وہ میری بیٹی نہیں ہے؟ شرمندہ ہوں اس بہن کے لیے, شرمندہ ہوں اس بچے کے لیے, اس گجرات کے بچے کے لیے. جنگ لڑے ہمیں کوئی ضرورت, ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. ہم ان کو کبھی یہ نہیں کہیں گے آپ مت لڑو. خون کا بدلہ خون جب تک نہیں آئے گا تب تک شانتی پیدا نہیں کر سکتے ہو آپ. یہ جو ماحول ابھی چل رہا ہے 22 تاریخ کے بعد کا, کیا کہنا ہے آپ کا؟ 22 تاریخ کا دکھ پوری ریاست جموں کشمیر کو ہے, اسپیشلی کشمیر کے لوگوں کو ہے. یہ ایک ایسا قاتلانہ اور جاہلانہ حملہ ہے جو ناقابل برداشت ہے. نہتے اور غریب لوگ, میں تو غریب ہی ہوں, مظلوم گھومنے آئے تھے جو, ان کا قتل عام یہ اچھی بات نہیں ہے. اور ان قاتلوں کو اس مقام تک پہنچانا چاہیے جس حد تک ہو سکے وہ سزا ان کو ملنی چاہیے. وہ ہم ان کے ساتھ ہیں. جو بھی سزا سرکار ان کے لیے طے کرے یا لیجسلیٹیو کرے یا ایز اے لیجسلیٹر کرے, ایز اے سرکار کرے, ایز اے کورٹ کرے, عوام کشمیر کی اس کے ساتھ ہے. سخت سے سخت سزا ان کو ملنی چاہیے. نہتے اور بے گناہوں کا قتل عام اس کو کسی بھی حالت میں برداشت نہ کیا جائے. آپ کا نظریہ تو بہت اچھا ہے, بہت اچھی طرح سے آپ بات کر رہے ہیں, مگر وہ جو 28 لوگ گئے اور ان کو سزا بھی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ کیا, ایسا آپ بولے, یہ ان کو تو سزا ہوگی, ان کو ڈھونڈیں گے, ان کا کچھ تو ہوگا, مگر ان کے جو آقا ہے جو ایک کروا رہے ہیں ان کا کیا کریں گے؟ دیکھیے میں آپ سے کھل کے کہوں, اگر کوئی بھی ملک اس ریاست میں یہاں پہ بار بار پھر کہوں گا, جن 28 بے گناہوں کی جان جنہوں نے لی ان کو تو سزا ملے گی. آپ بھی بولے کہ ان کو سزا ہونی چاہیے, مگر ان جس نے وہ ان سے کروایا ہے ان کے آقاؤں کا کیا کریں گے؟ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اسپیشلی بارڈر کے لوگ, نہ صحیح ویلی کے لوگ. ان ہسٹری 90 سے لے کے آج تک میں نے کشمیر ویلی, جموں سے لکھن پور سے لے کے تحصیل اوڑی کے کمان پل تک کشمیر کو کبھی بند ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ہسٹری فرسٹ ٹائم کہ ان قاتلوں کے لیے پورا جموں کشمیر بند ہوا. آپ کھڑے تو ہو جائیں, ڈھونڈیے انہیں. مطلب 22 تاریخ کے بعد بالکل پورا اوڑی بند تھا. اوڑی نہیں, پوری ریاست جموں کشمیر, جموں کا ڈوگرا, کشمیر کا کشمیری, چناب کا پہاڑی, بلیسا کا بارڈری اور لداخ کا لداخی, کشمیر کا کشمیری, اوڑی کا پہاڑی اور گجر مل کے اس چیز کے خلاف انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ اس ظلم اور قاہرانہ حرکت کو برداشت نہیں کیا جائے گا. میں پھر آپ سے کہوں گا کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ اس بات کے مبارکباد کے حقدار ہیں کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے پہلی بار یہ ثبوت دیا کہ بے گناہوں کا قتل عام برداشت نہیں کیا جائے گا, نہیں کیا جائے گا. تو ان کو سزا تو ملے گی, مگر میں وہ آقاؤں کے بارے میں جو بولا اس کا کیا؟ میں آپ سے پھر ایک چیز اور کہوں گا, 47, 55, 65, 71, 99 ہمارے ابا اور اجدادوں نے ہم سے یہ وصیت کر کے گئے ہوئے ہیں. وصیت سمجھتے ہو وصیت کس کو بولتے ہیں؟ وصیت کر کے گئے ہیں کہ قبائلیوں کے دور سے جو دور ان نے دیکھا ہے ان کے ساتھ ہم کبھی کھڑے نہیں ہیں. لیکن آپ تو کھڑے ہو جائیں, آپ ڈھونڈیے ان کو, پاتال کے نیچے ہیں یا پاتال کے اوپر ہیں, آپ نکالیے انہیں پہلے, ان قاتلوں کو. ہم آپ کے ساتھ ہیں, میں نہیں, پوری ریاست جموں کشمیر کی عوام آپ کے ساتھ ہے. تو دیری کس بات کی بھائی؟ صحیح ہے. مطلب ابھی جنہوں نے یہ کیا وہ قبائلیوں جیسے ہی ہے, آپ کا کہنا ہے؟ یہ تو میں تو کہوں گا کہ یہ تو اس سے بھی بدتر ہے. ایک بہن کی شادی, اس کا ابھی چوڑا اس کے ہاتھ میں لگا ہوا, اس کی مہندی اس سے اتری ہوئی نہیں ہے ہاتھوں سے, اور وہ بیچاری ہنی مون کے لیے کشمیر میں آ رہی ہے. کیا یہ میرے لیے دکھ کی بات نہیں ہے؟ کیا وہ میری بہن نہیں ہے؟ کیا وہ میری بیٹی نہیں ہے؟ شرمندہ ہوں اس بہن کے لیے,
शर्मिंदा हूँ उस बच्चे के लिए, उस गुजरात के बच्चे के लिए जिस वक्त होम मिनिस्टर साहब उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और वो बेटा कह रहा, तो अल्लाह गवाह है मेरी आंखों से आज भी आंसू आते हैं जब मैं वो चीज़ वो देखता हूँ। उस बच्चे ने कैसे रोया, कहा अब्बा मेरे पापा, और मैं जानता हूँ कि एक बाप, एक बेटी का बाप भी एक बच्चे का बाप होते हुए भी मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। यतीम होना आसान बात नहीं है। वो बच्चा सारी ज़िंदगी जब तक जवान होता रहेगा ना, जब तक वो उस बाप को ढूंढेगा, कोई उसके बाप की भरपाई को पूरा नहीं कर पाएगा। एक नंबर दो, वो बहन जो हमारी विधवा हुई, क्या जब भी कश्मीर की बात होगी, कश्मीर तो बदनाम कर दिया लोगों ने, लेकिन उसकी आंखों से वो आंसू जो टपकेंगे, सारी ज़िंदगी भर कश्मीरियों को इस चीज़ का दर्द रहेगा कि एक 6 दिन की दुल्हन यहाँ से विधवा हो गई, जिसका शौहर कल तक नेवी में सफ़ेद वर्दी पहन के चलता था और वह हनीमून के दुल्हे के कपड़े में आया और वह यहाँ से कफन लपेट के गया। ये हमारे लिए शर्मिंदगी नहीं है? जी सही है। ये दुख हमें नहीं है? ये दुख जितना मुझे है उतना इस बुजुर्ग को हो, उतना इस नौजवान को, उतना इस बुजुर्ग को भी है। ये किसी भी, आप यकीन माने आप कि अगर काश हम भी वो वीडियो डालें जो हमारी बहनें माएँ घरों में रोई है, मेरा अल्लाह जानता है या मेरा ऊपर वाला जानता, हमारे घरों में रात का चूल्हा नहीं जला और किसी ने खाना नहीं खाया। उस विधवा बहन को जब देखा आपने, शोहर की उस लाश पे जब वो पड़ी हुई थी, उस शहीद, मैं तो कहूँगा तो भारत सरकार से ये मेरी गुजारिश होगी कि उनको तो शहीदों का दर्जा दिया जाए। बहन, मैं आपके माध्यम से उन 28 लोगों को और स्पेशली उस बहन को भी श्रद्धांजलि भी देता हूँ आपके उस दुख में, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर कि अवाम आपको शर्मिंदगी एहसास करती है कि हम उस काबिल आपको न समझे थे, करना कुछ और था, हो कुछ और गया। बहुत अच्छी बात की, इतना जेन्युइन बात मैंने आज तक सुनी नहीं। आपके जो बताते समय आपकी आंखों में आंसू आए थे। मैं एक बाप हूँ, पहले मैं बताऊँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे भी घर में एक बेटी है, मैं एक बहन वाला हूँ, मैं कल जमाई वाला भी बन सकता हूँ, मैं कल ससुर भी बनूंगा, मैं एक बाप का बेटा भी हूँ, मेरे घर में बेटी भी है। अल्लाह ना करे कल मेरी बेटी के साथ ऐसा हो तो मुझ पे क्या बीतेगी। सही है। मैंने 6 साल की उम्र में, ही इज़ द फर्स्ट लायर ऑफ उड़ी तहसील, माय फादर इज़ एडवोकेट, तब यहाँ उतने तालीम याफ्ता लोग नहीं, तहसील उड़ी के कुछ गिने चुने लोग। इस उड़ी तहसील में जिस ज़माने में 65 में जिन लोगों ने, उनमें मोहम्मद शफी उड़ी, मोहतरम अब्दुल गनी बांडे, काजी मोहम्मद शेख, हाशिम अली खान, मकबूल साहब, ये कुछ लोग, चंद लोग जो तहसील उड़ी में तालीम याफ्ता लोग थे, मास्टर गुलाम मुहिद्दीन मलिक साहब, ये कुछ लोग, और उसके बाद हम हैं। लेकिन मैंने अपने फादर को, ही इज़ द कैंसर पेशेंट ऑफ 89 में उनकी डेथ हुई है, मैंने झेली है अलगाववाद के बिना मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने उस यतीमी को झेला हुआ है। मैं समझता हूँ कि यतीमी क्या होती है। ये सारे लोगों के जो मन में है आपने अकेले नहीं बता दिया। आपको मैंने, आप पे मुझ पे गर्व है, ऐसा कश्मीरी होना चाहिए। जब आप बात कर रहे थे ना तो आपकी आंख में आंसू आए थे और मेरे भी आंख में आंसू आने लगे। आंसू, बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ मैं उस बहन को जब भी आज देखता हूँ, अल्लाह की मुझे आंख में आंसू आते हैं। जी। उस बच्चे को जब मैं गुजरात के उसको देखता हूँ ना, मेरी आंखों में आज भी आंसू आते हैं। क्या हो गया इस इंसानियत को? सबसे ऊपर इंसानियत है। उनने मारा, क्या अल्लाह ताला उनके लिए ऐसा गजब का फैसला नहीं करेगा? ये तो चाहते हैं, ये आवाम चाहती है। इनमें से किसी से पूछ ले आप, कैमरा घुमा के, कौन चाहता है उन कातिलों को माफ किया जाए? सही है आपका। वो हमारे बच्चे नहीं थे, वो हमारी बहनें नहीं थी, जिनके सामने पूछ के मैं उनकी जुबान से, उन टूरिस्टों ने जो कहा कि उनको मारा गया या मजहब की बुनियादों पे या जिसकी भी बुनियाद पे, गलत है। सही बिल्कुल है आपका। हम 2000 किलोमीटर से यहाँ आ गए। ये भावना क्या है ये जानने के लिए 22 तारीख के बाद जो कश्मीर में हुआ है, ये कश्मीर एक्चुअली आपकी मुंह से जो सुनाना, सारी कश्मीरियों की आवाज़ आपकी मुंह से आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी। जी बोलिए। जंग का माहौल एक तैयार किया जा रहा है। हम नहीं कहते हैं, जैसा हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री और फौज को अच्छा लगेगा, बॉर्डर एरिया के लोग हमेशा उनके साथ रहें, पहली बात। लेकिन उसके साथ साथ पहले इनकी व्यवस्था की ज़रूरत है। हमने झेली है वो भी। मैं ज़्यादा पुरानी में, वो तो हमने अपने पुरखों से सुना है। 1999 हमने झेला हुआ है। 99 में जब शल यहाँ पे गिरते थे, बच्चों का दूध, चावल और राशन नहीं मिला,
सरकार को चाहिए, आपके माध्यम से मैं एक बार फिर आपसे कहता हूँ, यहाँ के लोगों को सबसे पहले वो बैंकर की फैसिलिटी दें। जंग लड़े हमें कोई जरूरत, उनके साथ हम खड़े हैं, हम उनको कभी ये नहीं कहेंगे आप मत लड़ो। खून का बदला खून जब तक नहीं आएगा तब तक शांति पैदा नहीं कर सकते हो आप। मगर इन लोगों की हाँ, पहले लोगों के बारे में सोचें, इनको स्पेशल बंकर दिए जाएं और जो सरकार ने बनाए हैं उस पे भी इंक्वायरी बैठाई जाए कि अभी वो बंकर तैयार नहीं है, ना वो फैसिलिटेट हैं उस तरीके से बने गए हैं। ठीक है, पैसा निकाला गया है, इलीगल तरीके से निकाला गया, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छी तरह से नहीं बने हैं, फैसिलिटेट किया जाए। और सरकार से हमारी एक रिक्वेस्ट और रहेगी, सरकार बैंकर दे लेकिन सिंगल पर्सन को दे, फी घर को बैंकर दे, कम्युनिटी बेस पे ना दें। आप एक जगह पे 1-2 किलोमीटर की दूरी पे बैंकर बना रहे हो, पूरा गांव जब शेलिंग शुरू होगी वो कहां से अपने बच्चों को लेके जाएगा या अपने आप की जान बचाएगा। फी घर को एक बैंकर चाहिए और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, स्पेशली बॉर्डर के लोगों के लिए। ये यहाँ की बात नहीं, ये नौशहरा वालों की बात कर रहा हूँ मैं, जो जम्मू में रहते हैं, जो पुंछ और राजौरी में रहते हैं, जो गरेस और टंगडार में रहते हैं, जो आपके लद्दाख और करगिल में रहते हैं, जो आपके बांडीपोरा वाले ये अपना कुपवाड़ा एरिया में रहते हैं, करना में रहते हैं, उड़ी में रहते हैं, इनके लिए स्पेशली एक सरकार फाइनेंशियल एक रेजोल्यूशन बना के हर घर को एक एक बैंकर चाहिए। यस, आपकी बात ध्यान में आ गई, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। सिर्फ आपका नाम बताइए। मेरा नाम खुर्शीद बांडे है, मैं तहसील उड़ी का बाशिंदा हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। तो बहुत बड़े बाशिंदे, Thank you, मुझे sir. अभिमान आहे आप पे। यस, थँक्यू थँक्यू। तर हे होते सगळे उरीचे नागरिक, यांच्या मनात नेमकं काय आहे, जवळजवळ गेली 15 मिनिटं आपण ते ऐकतो आहे। खरोखरच यांची जी भावना आहे ती, त्या भावनेचा सरकार निश्चितपणे विचार करेल अशी आशा करून आपण इथं थांबूया। जम्मू काश्मीरच्या उरीमधून भारतीय सीमेवरून बखर लाईव्हसाठी उमेश घोंगडे। समाजकारण, प्रशासन आणि राजकारणातल्या अचूक विश्लेषणासाठी बखर लाईव्हच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा।